Assalamualaikum everyone. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे and let's start other lecture. It says osmoregulation in aquatic or freshwater animals. अच्छा, एक्वेटिक की जो टर्म है वो यूजुअली हम फ्रेश वाटर के लिए यूज़ करते हैं. जो मरीन है वो इसका अदर पार्ट है. मरीन में हम पर्टिकुलरली सी वाटर में रहने वाले एनिमल्स को डिस्कस करते हैं. बेटा, इन फ्रेश वाटर एनिमल्स देयर आर टू वेज ऑफ मेंटेनिंग doing osmotic regulation or maintaining water contents. The first one is by contractile vacuole. This is particularly for unicellular animals. And unicellular animals have which phylum? They have protozoa और protozoa को हम प्रोटोक्टिस्टा जो है इसका किंगडम हम कंसिडर करते हैं, जिसमें अमीबा पैरामीशियम आते हैं. They have membrane bounded structure, so they have got contractile vacuoles within them to maintain, to keep and then lose extra water. Since they have higher osmotic pressure than their surrounding, so they since they have higher water potential, lower water potential, since from their surrounding, higher osmotic pressure than the surrounding, that's why they need to maintain it, and they keep on losing water. They need to lose water, otherwise हमने बात की थी कि बस्ट आउट हो जाएंगे. ये मेरे पास एक बुक है, गाइड बुक है, मैं इसमें दिखा दूँ आपको कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ये यूरिन फॉर्मेशन जो होगा ये हायर एनिमल्स की बात हो रही है. जो लोअर एनिमल्स हैं ये यूनिसेलुलर, यूजुअली दे मेंटेन ऑस्मोसिस बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इसके अंदर हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है बेटा. ये दिस इज टाइनी membrane bounded structure which we call vacuole. Vacuole means some empty structure. और वो empty structure कैसा है कि जो भी extra water waste या cytoplasm में बन रहा है, metabolic waste बन रहा है, it keeps absorbing or storing all those material. और जब ये fill up हो जाता है, it goes near to the periphery और वहाँ जाके burst होता है और बाहर के surrounding में इसको release कर देता है. Water with dissolved carbon dioxide and uric acid is collected from the endoplasm, which gradually increases in size up to a maximum. It slowly moves to surface and then it releases it out in the surrounding. Let me change the I'm holding phone in my right hand, so you people do not face much problem. यहाँ पर ये देखेंगे, इस बुक के स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको भेज दूँगी. अच्छा, ये देखो, ये मूवमेंट है, मूवमेंट चल रही है, तो इट नीड्स mitochondria. It needs energy. Energy comes from mitochondria because mitochondria are known as powerhouses of cell. उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ये आया near the periphery and it has released all the excretory waste in surrounding. So this happens in unicellular organisms only. मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि when I had given this question in midterm examination, actually I had given question, I had asked about osmoregulation in freshwater animals, freshwater fishes actually. और आपने उसमें मुझे contractile vacuole भी दिया था. नो बेटा, contractile vacuole performs osmoregulation at cellular level or in unicellular organisms. In higher animals like vertebrates, because fish is a vertebrate, उसमें आपको जो है वो यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस बताना है. वो यूरिन बनता है इस तरह से, सेल टू सेल जो मटेरियल है वो रिलीज नहीं हो रहा होता. ठीक. In amoeba and paramecium, the amount of water and other substances remain in balance because of this contractile vacuole, and the process is termed as osmoregulation. That's it. कहानी खत्म. Now come to other part. Osmoregulation by producing certain amount of urine, और इसमें दो types हैं, एक fresh water है और दूसरा marine है. Fresh water, since they are living in fresh water, they have got plenty of water in their surrounding and they are continuously taking that water in, so they need to make urine.
लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, और जब लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन बन रहा है तो बेटा उसकी कंसनट्रेशन मस्ट बी डाइल्यूटेड होगी, ठीक है। अच्छा, हमने पहले भी बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जिनकी सराउंडिंग में पानी जाता है, जिनको वाटर लॉस करना है, दे कीप देयर बॉडी हाइपरटोनिक। इसमें हमने बात की थी कि ह्यूमन किडनीज स्टोर यूरिया, जो अर्थवर्म्स वगैरह हैं या जो कॉकरोचेस हैं, दे रिटेन सम अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, और फिशेस भी कुछ सॉल्ट्स को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। दैट मेक्स देयर ओवरऑल कंसनट्रेशन, बॉडी कंसनट्रेशन हाइपरटोनिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग। और जब इनकी हाइपरटोनिक हो गई, मीन्स दे हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर, सराउंडिंग हैज़ मोर अमाउंट ऑफ वाटर, तो इवेंचुअली दे आर गोइंग टू लूज मच ऑफ द टेकन इन वाटर, और वो पानी फिर इनके पास ज़्यादा रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि सराउंडिंग में बहुत पानी है, और अगर ये पानी रिटेन करने लगेंगे, ईच सेल वुड स्वेल अप एंड विल बर्स्ट आउट। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, this animal cells do not possess any cell wall or any rigid structure, okay? Let's read this together. That freshwater fishes maintain a salt concentration in their body fluid higher than the surrounding water, so that they have body fluid hypertonic to their surrounding. That's why they expel water and retain salts. अच्छा, वो करते क्या है कि कंटिन्यू जो पानी बाहर से ले रहे हैं, मुंह खोल के पानी ले रहे होते हैं, उसी पानी में से दे हैव टू एब्जॉर्ब, डिफ्यूज ऑक्सीजन, दे हैव टू एड अप कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट वाटर। वो सारा काम पानी से कर रहे हैं, जो कि हम लोग एयर के साथ कर रहे होते हैं। तो वो करते क्या है कि उसमें से कुछ सॉल्ट रिटेन कर लेते हैं, बाकी का पानी निकाल देते हैं। बिकॉज इफ दे लूज टू मच सॉल्ट और टेक इन टू मच वाटर, दे वुड डाई, बर्स्ट आउट हो जाएंगे। हमें पता है कि बॉडीज़, डेड बॉडीज़ या जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनको भी इवन हम रख दें तो वो काफ़ी टाइम मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव cell wall that's a waterproof and rigid structure. But living cells, particularly animal cell, फूल जाते हैं और डाई हो जाते हैं, गलने सड़ने लगते हैं। रीज़न वो water would enter and it eventually burst them up. Freshwater fishes do not drink water. The water comes in through their skin and gills. They also absorb salt through their gills and take in salts in their food. ठीक, जो खाना वो खा रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, अगर वो हर्बीवोरस हैं तो प्लांट्स खा रही होती हैं, छोटी फिशेज़ हैं, लार्ज फिशेज़ हैं, वो स्मॉल फिशेज़ को खा रही होती हैं, जिसको भी इवेंचुअली दे आर टेकिंग इन। हमने पढ़ा था कि जो मरीन प्लांट्स हैं उनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं इसी पर्पस के लिए कि वो अपनी सैलिनिटी को थोड़ा मैनेज करते हैं, हाइपरटोनिक कंसनट्रेशन रखते हैं, तो वाटर रिटेन नहीं कर पाता उनमें और वो निकल जाता है। ठीक, और यही होता है फिशेस के अंदर। तो वट एवर दे आर ईटिंग, वेदर दे आर ईटिंग मरीन प्लांट्स और फिशेस, दे आर टेकिंग सम सॉल्ट with the food. From the blood, salts are filtered by the kidneys, which are reabsorbed, so the produce a large volume of dilute urine. किडनी के अंदर थोड़ा सॉल्ट रोक लेते हैं और फिर उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटोनिसिटी की वजह से दे एंड अप मेकिंग डाइल्यूटेड यूरिन, यानी वो जितना ज़्यादा पानी वो ले रहे होते हैं, उस पानी की जो मैक्स क्वांटिटी है वो यूरिन की फॉर्म में पास आउट कर रहे होते हैं। दिस यूरिन इज पास आउट ऑफ देयर बॉडी। ठीक, ये डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अ फ्रेश वाटर फिश, सॉल्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड। ये इसके गट जा रहा है, इंटेस्टाइन, सॉल्ट इसमें से भी इसने रोका, फूड में से जो सॉल्ट लिया था। सॉल्ट एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू गिल्स, सॉल्ट जो है गिल्स में भी गया। वाटर पैसिवली एब्जॉर्ब थ्रू गिल्स, यहाँ से भी इसने पानी को एब्जॉर्ब किया। सॉल्ट्स रीअब्जॉर्ब्ड इन किडनीज ने कुछ सॉल्ट्स को रोक लिया और उसकी वजह से हुआ क्या, सॉल्ट्स इसके पास ज़्यादा थे, वाटर कंसनट्रेशन यहाँ कम हो गई, तो वाटर डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द बॉडी इन लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे पानी कुछ जो रुका वो अंदर इस तरह रुका। ठीक है, नाउ कम टू द अदर पार्ट, that's osmoregulation in marine animals. And how do? They do it by producing a small amount of urine, and must be when urine is produced in a small amount, that must be concentrated. Concentrated means it carries
less amount of water and more salts and nitrogenous waste materials. And marine animals or marine fishes are usually bony. Okay, they live in seawater, so their internal body fluid contains less concentration of salt. That is, they have hypotonic bodies than sea water. Definitely sea में तो बहुत ज़्यादा salt होता है, इनकी बॉडी में उससे कम होता है. सो फ्रॉम देयर सराउंडिंग दे आर कंसीडर्ड हाइपोटोनिक. ऐसे हमें मालूम है फ्रेश वाटर फिशेस में हम जो है रेसिपी में पकाते हुए बहुत ज़्यादा मतलब हम एक एवरेज सॉल्ट डालते हैं, और बोनी फिशेस में हम उतना सॉल्ट नहीं डालते, उससे कम डालते हैं. रीज़न क्या है कि भाई ये जो समंदर की मछली होती है, खारे पानी की मछली है, वो ऑलरेडी सॉल्टी होती है. ठीक, पर अभी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इसकी सराउंडिंग से. तो एज कम्पेयर टू इट्स सराउंडिंग इट इज़ हाइपोटोनिक. दीज फिशेस हैव टू एक्सपेल सॉल्ट्स एंड रिटेन वाटर बिकॉज इनकी सराउंडिंग में पानी कम है, सॉल्ट ज़्यादा है. These fishes drink water continuously. They keep on taking the surrounding water. और उसमें से करते क्या, when their blood flows through kidneys, they do not absorb salts. Salts are excreted out क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और अगर उसको रोकेंगे तो सॉल्ट रोकेगा तो वो पानी को भी रोकेगा, और बॉडी की जो कंसनट्रेशन है बहुत ख़राब हो जाएगी. दैट्स वाई दे कीप ऑन रिमूविंग सॉल्ट्स, excrete out salts along with urine, and that urine is concentrated. क्यों? Definitely जब उसमें salts, nitrogenous waste की amount high है, water की amount कम है, तो that kind of solution is called concentrated solution. They also excrete salts through special excretory cells of gills. सेल्स इनके गिल्स में भी होते हैं, वहाँ से भी ये एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को निकाल रहे होते हैं, जिसको यूरिन में नहीं निकाल पाते, क्योंकि यूरिन में निकालने के लिए दे हैव टू ऐड अप सम वाटर इन दैट, जो कि वो लूज़ करना नहीं चाह रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से वो उसको गिल्स के थ्रू भी सॉल्ट को निकालते हैं. लॉस ऑफ वाटर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू देयर स्किन से भी वाटर लॉस करते हैं. लेट्स सी द पिक्चर. दिस से सी वाटर imbibed, taken in, salts actively transport out of gills, water and salts absorbed from gut. यहाँ से भी definitely वो food में भी आ रहा है salt, पानी में भी आ रहा है, उसको इन्होंने रीअब्जॉर्ब किया, और फीसेस में भी वो सॉल्ट को लूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बॉडी की ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, वरना पानी रिटेन नहीं कर सकेगा और बॉडी इनकी डिहाइड्रेट हो जाएगी. सॉल्ट्स रिमूव बाय किडनीज, और वो सॉल्ट जहाँ किडनी को भी जितना सॉल्ट मिलता है वो उसको कोशिश करती है निकाले, फिल्टर करे, और फिल्टर करके उसको फिल्ट्रेट में ही रहने देता है, एंड दैट इज़ इवेंचुअली पास्ड आउट इन urine. Okay, this happens this way. Okay, the other is shark and rays. By storing excretory product, ये वो बात जो हमने की थी कि higher animals like sharks and rays store high concentration of urea in their body, so the body fluid is slightly hypertonic than the surrounding water. They do not face the problem of water loss for this reason, क्योंकि वो hypertonic है. हाइपरटोनिक है तो वाटर रुकेगा डेफिनेटली उनके पास. दे कंटेन स्पेशल ग्लैंड्स इन द रेक्टम विच हेल्प टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, और उनके पास रेक्टम में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स हैं जो लेटर ऑन उनको सॉल्ट्स रिमूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक, अच्छा, देयर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सम मरीन इनवर्टिब्रेट्स जो है लाइक हैग फिशेस. इनकी बेटा समटाइम्स एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन आता है रीजनिंग और समटाइम्स नॉन रीजनिंग भी, इसको आप अच्छे से देख लो. दे आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. ओके, स्पेलिंग FOR है, ठीक है, इट्स नॉट अ स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज़ FOR, conformers. Okay, why they are called osmo conformers means they don't need to keep their body hypotonic or hypertonic to keep water, to retain water, because they have isotonic body fluid. Iso means same, tonic means concentration. They have similar concentration to their surroundings, इसलिए इनको osmoregulation का कोई mechanism achieve करने की ज़रूरत ही नहीं है. They don't need to develop strategies for osmoregulation because they have isotonic body fluid. और वो isotonic की वजह से फ़ायदा क्या है
कि बाहर जैसा है, कोई सॉल्ट रोकने की, सॉल्ट रिलीज़ करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर द सराउंडिंग हैज़ दे हैव द सेम। ये आराम से उसमें से वाटर ले भी सकते हैं, वाटर दे भी सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके लिए मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ बेटा, यू कैन कंसिडर एग्जांपल ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स का टेस्ट कोई बहुत अच्छा नहीं होता यूजली, ठीक, बट they are consumed by sports person reason। वो isotonic solutions होते हैं and they are readily dissolved across the plasma membrane of our cells। क्योंकि अगर hypertonic हो या hypotonic है, हम plain water पी रहे हैं, that's hypotonic, ठीक है, उसके अंदर बहुत थोड़े से भी salts वगैरह होते हैं। that has to go along the long process of osmoregulation। पहले तो बॉडी में चले आता है, फिर उसको ब्लड में डालते हैं, फिर किडनीज फिल्टर करते हैं वगैरह, और वो मतलब ब्लड में जा रहा है, ठीक, इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगा, फिर हमें पता है विलाय है, विलाय या तो डिफ्यूजन करते हैं या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर पिकअप कर रहे होंगे, ओके। पर अगर हम जो है बहुत ज़्यादा कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, लाइक हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट या बहुत ज़्यादा शुगर एडेड सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगेन वो हमें रैपिड एनर्जी नहीं देता, ब्लड में जाने में टाइम चाहिए उसको, ठीक है। तो रीज़न वही है कि हमारी बॉडी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसको पिकअप करना होगा, डाइजेशन होगा वगैरह वगैरह। बट sports drink are isotonic। Isotonic means similar to our body's composition, ब्लड कॉम्पोजिशन, प्लाज्मा कॉम्पोजिशन। तो वो टेस्ट कोई बहुत स्पेशल नहीं कर रहे होते हैं मिल, बट द बेनिफिट इज एज सुन एज वी ड्रिंक दम दे रेडिली गो टू ब्लड। और डिफ्यूजन करूँ या एक्टिव ट्रांसपोर्ट करूँ, एंड ऑस्मोसिस होगा या एक्स ऑस्मोसिस होगा, इसके लिए हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा बॉदर करना नहीं पड़ता, एंड दे जस्ट our body just accept it and cells just take it up, और वो हमें रेडी एनर्जी दे देते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। मैं आपको इस लेक्चर के साथ जो आपका हमारा जो फेसबुक पेज है, आई विल बी सेंडिंग स्क्रीन शॉट ऑफ दिस बुक देयर along with the link of this lecture। I hope it will eventually help you out। Also, at the completion of chapter, I'll be sharing notes that I had given you in classes in printed form. I'll be sending you the soft copy as well, so you can have a good review, and we'll see you in the next lecture. All the best, girls.